Good morning to all of you. This is a new lecture series on basics of share market. And we are saying it share market, but later we will see it is not actually the share market. It is the securities market, which are generally termed as share market. So first I will introduce myself. So I am Rahul Dhakad. So I have done my bachelor's in engineering in 2018. Afterward, I have done MBA in finance and I have also done MBA in marketing. So this is just because I want to give you a basic idea why I am capable to teach you this particular topic. So let's begin. So today's outline is something like that. So first we will see what are the basic human needs, want and desires, and why we need to identify them so that we can further budget ourselves to get better financial results. So we will see about that in later part. Then we will see what are the securities, is share market legal or illegal, what are the types of market. We will also see some basic type of markets. Then we will see a myth about the share market which you all regularly listen on internet. So what are the needs? So needs are those things that are essential for our survival and well-being. So अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें कुछ ना कुछ चाहिए रहता है इसके लिए, जैसे हमें खाना चाहिए, जैसे हमें कपड़े चाहिए, जैसे हमें छत चाहिए रहने के लिए. सो दीज आर आर बेसिक नीड्स. ठीक है. वांट्स आर टू इनहांस द लाइफ क्वालिटी बट आर नॉट एसेंशियल. दैट मीन्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हमारी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं. वो हमें ज़िंदा रहने के लिए तो ज़रूरी नहीं है, बट उनके होने से हमारी जो लाइफ है वो बहुत ईजी हो जाती है. ठीक है. उसमें थोड़ा सा सुधार आ जाता है, लिविंग स्टैंडर्ड में थोड़ा सा सुधार आ सकता है. एंड डिजायर आर द थिंग दैट वी क्रेव बट मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड. तो ये वो चीज़ें होती हैं, डिजायर के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो हम चाहते हैं खरीदना, बट ड्यू टू आर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खरीदना. ठीक है. जैसे कोई बहुत महंगी चीज़ हो गई, बहुत महंगी कार हो गई जो हम आज अफोर्ड नहीं कर सकते. इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी अफोर्ड नहीं कर सकते, पर्टिकुलर सिचुएशन में अफोर्ड नहीं कर सकते. सो व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नीड्स, the desires and the wants in the life. So when we budget our daily life, like I need this much amount for my house rent, I need this much amount for my study, I need this much amount for my food, this much amount for traveling. So when we differentiate these things, so we need clear differentiation between what are the needs without which I cannot survive. Okay. So this is very important that you should first identify your needs, what are your wants and what are your desires, so that you can clearly make a goal to achieve that. Okay. So if we spend too much money on our desires or want without providing for our needs, life may become difficult. अब होगा क्या, अगर आपने कुछ पैसा अपनी वॉन्ट्स पे खर्च कर दिया जबकि आपको वो पैसा अपने नीड्स के लिए चाहिए था, तो आपकी जो लाइफ होगी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाएगी. इनफैक्ट परसुइंग आवर डिजायर्स, इफ वी रिसोर्ट टू बोरोइंग the interest on borrowing would add to cost and can potentially lead one into a debt trap. So अगर हम हमारे जो डिज़ायर्स हैं उन्हें अगर हम किसी से बोरो करके यानी किसी से उधार लेके अगर पूरा करते हैं तो दिस विल लीड टू द डेट ट्रैप. सो इससे क्या होगा, हम कर्जे में आ जाएंगे कुछ दिनों में. ठीक है. उससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. तो यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं, हम हमारी मनी को इस तरीके से मैनेज करना सीखना चाह रहे हैं जिसमें जो हमारे नीड्स हैं
वो आसानी से फुलफिल हों और हम हमारे जो वांट्स हैं उनकी तरफ तब शिफ्ट हों जब हमारी जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाए। सो what are the financial expenses which we can classify as needs? So these are our food expenses, our dressing expenses, our rent, our health expenditure. So these are the needs so that we can live. And what are the desires? So our desires are, I want a new car, I want a new dress, I want a new I want to travel somewhere, I want to eat something special. So these are our wants. So I can afford it, but I am not doing it because I want to fulfill my needs for now. So you can try these things to separate out. I have given some different 3 categories so you can understand what are the needs, what are the wants, and what are the desires. So try to separate these desires, wants, and needs in your free time, so you can easily understand what you want in the life. So now we will see what is सिक्योरिटीज। ओके, सो पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि सिक्योरिटीज होती क्या है। सिक्योरिटीज कोई भी वह वस्तु है जो आप ओपन मार्केट में बेचकर उससे कुछ मनी या कोई अदर वैल्यूएबल चीज खरीद सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसकी मैंने डेफिनेशन दी है, जो फॉर्मल डेफिनेशन होती है वो, सिक्योरिटी रिलेट्स टू अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल एसेट दैट कैन बी ट्रेडेड इन द ओपन मार्केट। ट्रेड मतलब जिसको खरीदा बेचा जा सकता है इन फ्यूचर और करंटली, वेन एवर आई नीड मनी और आई नीड समथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। तो जनरली हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मनी होती है तो हम मनी को ही एक्सचेंज कर लेते हैं किसी गुड के बिहाफ पे। तो उसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि अ स्टॉक। अ स्टॉक मीन्स अ शेयर ऑफ अ company. So this we will see in later parts what a stock is. For now you can imagine a thing which can be traded in the market. Then we have bonds, we have option contracts, we have share of mutual funds, etc, etc. These are the terms that you are not familiar with. These are the terms that you are not familiar with, so we will see them in later parts. So all the example belongs to a particular class or a type of securities. जो ऊपर एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं वो किसी न किसी सिक्योरिटी के क्लास से रिलेट करते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा आप जिससे फेमिलियर होंगे वो एक स्टॉक होगा, या जिसको हम शेयर भी बोलते हैं। तो आप अभी तक जनरली जो समझते आए हैं कि जो स्टॉक है या जो शेयर है सिर्फ वही चीज़ ट्रेड होती है सिक्योरिटी मार्केट में, तो ऐसा नहीं है। कई अदर चीज़ें भी हैं, कई अदर चीज़ें हैं जो मार्केट में ट्रेड होती हैं। आई हैव गिवन सम एग्जाम्पल्स लाइक डेट सिक्योरिटीज, लाइक इक्विटी सिक्योरिटीज, लाइक डेरिवेटिव सिक्योरिटीज, एंड सम हाइब्रिड सिक्योरिटीज ऑल्सो। वी विल सी वन बाय वन what are they. So for now you can think of some 4 different types which we can trade in the securities market. ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो व्हाट इज सिक्योरिटीज मार्केट? अब जैसे सिक्योरिटीज तो हैं, ओके, शेयर्स हैं, ओके, हमारे पास बॉन्ड्स हैं, हमारे पास अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, तो हम इन्हें कहां पर खरीदें, कहां पर बेचें? तो these securities can be treated in a place called as securities market. So why we need that market? So let's see. Investor need to invest their money in line with their financial goals. तो जो पैसा है जिसके पास, जैसे सपोज आपके पास पैसा है और आप उससे कुछ पर्टिकुलर चीज खरीदना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो जो आपके पास पैसा है वो ऑटोमेटिक तो ग्रो होगा नहीं, आप उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करोगे, मतलब उस पैसे से कोई ऐसी चीज खरीदोगे जिसकी वैल्यू फ्यूचर में बढ़ने वाली है, सो दैट
कि जब आपको जो फ्यूचर में गोल्ड खरीदना है उसकी वैल्यू उतनी हो जाए, उस अमाउंट की वैल्यू उतनी हो जाए। सो दे ऑल्सो नीड लिक्विडिफाइड, दे ऑल्सो नीड लिक्विडिटी टू बी एबल टू एग्जिट द इन्वेस्टमेंट। इन चीजों को जब आपने इन्वेस्ट कर दिया, सपोज आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने उससे गोल्ड खरीद लिया, आप ये भी तो चाहोगे कि जब मुझे इस गोल्ड को मैं जब चाहूं तब बेच के वापस मनी में कन्वर्ट कर लूं। तो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। व्हेन अ इंस्ट्रूमेंट और व्हेन अ सिक्योरिटी इज सोल्ड इन द मार्केट, वी कैन गेट मनी फ्रॉम इट। ओके, सो दिस इज कॉल्ड लिक्विडिटी। सो अगर हमारे पास कोई सिक्योरिटी है तो वो ट्रेड भी होनी चाहिए इजीली, सो दैट वी कैन गेट मनी आउट ऑफ इट व्हेन एवर वी नीड। तो सिक्योरिटीज मार्केट प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट। सो सिक्योरिटीज मार्केट जो होते हैं वो हमें एक ऐसा तरीका देते हैं जिससे हम कॉस्ट इफेक्टिव बेस, मतलब जिसमें खर्चा कम आए उनको बेचने खरीदने में, और हम अपनी चीजों को आसानी से खरीद बेच पाए। It is a marketplace for securities while it offers an opportunity to invest to benefit from investing in securities issued by companies etc. It also offers liquidity or an exit route to invest to existing investor of the same securities. So सिक्योरिटीज मार्केट क्या काम करता है? सिक्योरिटी मार्केट उन इन्वेस्टर को वो जगह देता है जिसमें वो उस सिक्योरिटी को खरीद और बेच पाए आसानी से, ठीक है, ताकि वो जब निकलना चाहे उस सिक्योरिटीज के इन्वेस्टमेंट से वो निकल पाए। देन व्हाट इज सेबी? यू हैव हर्ड दिस नेम बिफोर आल्सो इफ यू नो समथिंग अबाउट शेयर मार्केट। सो सेबी एक्चुअली में है क्या? तो अगर सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटीज का मार्केट है, तो एक ऐसी बॉडी भी होनी चाहिए जो उस सिक्योरिटीज को, उस खरीद फरोख्त को या उस सेलिंग बाइंग को रेगुलेट करे, मतलब उससे संबंधित नियम बनाए या उस पर नजर रखे, निगरानी करे कि कोई जो है इलीगली या कुछ जो होता है कोई मतलब गलत प्रैक्टिसेस ना होने लगे मार्केट में। उसको रोकने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने एक बॉडी फॉर्म की, जिस बॉडी का नाम है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो यू कैन सी द चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, श्रीमती माधवीपुरी बुच। शी इज द चेयरपर्सन of the department and these are the members of the department. So you can see their names also, you can read them. So what are the Securities Exchange Board? So it was constituted as a non-statutory body, non-statutory body on April 12, 1998 through an resolution of a government of India. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रस्ताव पारित किया और उसके थ्रू एक बॉडी जो है वो फॉर्म की, यानी ये गैर संवैधानिक बॉडी है। गैर संवैधानिक यानी ये संविधान के द्वारा नहीं, किसी बॉडी के द्वारा फॉर्म की गई है। तो 12 अप्रैल 1988 को एक बॉडी फॉर्म की गई जो क्या करती है, जो इन सिक्योरिटीज की खरीद फरोख्त को क्या करती है, रेगुलाइज करती है। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ स्टेशनरी बॉडी इन द ईयर ऑफ 1992। बाद में जब 1992 में इसको क्या कर दिया, इसको संवैधानिक इकाई बना दिया गया, संवैधानिक बॉडी बना दिया गया इन 1992 एंड द प्रोविजंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 केम इनटू फोर्स ऑन जनवरी 30, 1992। सो बाद में इसको जब संवैधानिक इकाई बना दिया गया तो 1992 में ये एक एक्ट बन के आया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। सो सब कुछ जो है इस एक्ट के हिसाब से रेगुलेट किया जाता है इन द सिक्योरिटीज मार्केट। व्हाट इज द रोल ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट? सो इसका क्या क्या काम है सिक्योरिटीज मार्केट का, ये देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट इज to provide a marketplace for securities while it offers an opportunity to investor to benefit from investing in securities issued by the companies, governments, etc. It also offers liquidity or an exit route to existing investor of same security। जैसे दो लोग हैं जिनके पास सेम सिक्योरिटी है तो वह आपस में उसको खरीद फरोख्त कर सकते हैं। A well-regulated securities market test faith among
द इन्वेस्टर एंड हेल्प ग्रो इट फर्दर। तो जो एक अच्छे तरह का जैसे एक मार्केट होता है जिसमें बायर को ये भरोसा होता है कि मेरे पास सेलर्स आएंगे, और सेलर को ये भरोसा होता है कि मेरे पास बायर्स आएंगे, और हमारे पास में जो ट्रांजैक्शन होगा वो फेयर ट्रांजैक्शन होगा। तो ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है बोथ इन्वेस्टर्स को, जो कि बाय करना चाहते हैं और जो कि सेल करना चाहते हैं, दोनों तरीके के। हायर फेथ अमॉन्ग इन्वेस्टर ड्रॉज मोर मनी। तो जितना अच्छा भरोसा होगा, जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा लोगों में मार्केट के प्रति, उतने ज़्यादा इन्वेस्टर जो होंगे वो सिक्योरिटीज मार्केट में आएंगे और खरीद फरोख्त करेंगे। इट इज़ एसेंशियल फॉर द एफिशिएंट अलॉटमेंट ऑफ द रिसोर्सेज विद इन द इकोनॉमी। इट इनेबल्स हाउस होल्ड सेविंग्स टू गो इनटू द नेशन बिल्डिंग। सो इससे हमें फ़ायदा क्या है, जो नॉर्मल कॉमन मैन है वो भी क्या कर सकता है, इन सिक्योरिटीज़ को खरीद और बेच सकता है मार्केट के अंदर। इससे हमें जो फ़ायदा है गवर्नमेंट को वो क्या है कि जो नॉर्मल पर्सन जिसके पास पैसा है वो भी मार्केट के अंदर आ सकता है और अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि बाद में लेटर ऑन नेशन की ही बिल्डिंग में, मतलब लोगों के ही काम आएगा। हम उसी से क्या बनाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे और देश को बनाएंगे। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट? दो तरह के मेजरली सिक्योरिटी मार्केट के टाइप होते हैं। एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। तो प्राइमरी मार्केट जैसा आपने सुना होगा आईपीओ होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये क्या होता है हम इसको डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी सिर्फ आप इसका टाइप समझ लीजिए कि ये एक प्राइमरी मार्केट का टाइप है। एक होता है एफपीओ। सो ये क्या होता है, ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग होता है। इसमें क्या होता है, कुछ और शेयर्स कंपनी के मार्केट में फ्लो किए जाते हैं, मार्केट में लाए जाते हैं। और ऑफर फॉर सेल होता है, जैसे कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो अपनी शेयर्स को मार्केट में बेचना चाहता है तो वो ओएफएस के थ्रू जो है मार्केट में शेयर्स को बेचता है। फिर इसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर्स को बेचता है, कमोडिटी को बेचता है, डेरिवेटिव्स को बेचता है। अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज को क्या इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसे मान लो मैंने खरीद रखा है, मैं आपको बेच दूं, आपने खरीद रखा है, आप मुझे बेच दें। तो इस तरीके से सेकेंडरी मार्केट फंक्शन करता है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट सेकेंडरी मार्केट। फिर इसके बाद कुछ एक्सचेंजेस हैं जो मैंने आपको भी बताए थे। क्या होता है, देखिए जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसने एक बॉडी अलग तो बना दी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उस बॉडी के पास अथॉरिटी तो है कि वो रेगुलेट कर सकती है मार्केट को, पर मार्केट इतना बड़ा है कि एक जगह ट्रेड नहीं कर सकते, उसके लिए भी काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में कुछ मार्केट्स हैं इंडिया में, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनमें से कुछ ये 7 मैंने आपको लिस्ट कर रखे हैं जो अभी मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। ये लिस्ट आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। 7 स्टॉक मार्केट मैंने आपको लिस्ट करके दिए हैं। ये जो डेटा है वो जिस दिन मैं जो वीडियो है वो पब्लिश कर रहा हूँ उस दिन तक का है। कुछ पुराने मार्केट्स जो एग्जिट कर गए हैं उनकी लिस्ट आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। वेबसाइट में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं इंडिया के अंदर? तो पहला है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, फिर है कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज, फिर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, देन नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया, देन इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड एंड देन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एनएसई, जिसको आप कॉमनली जानते हैं। इनकी कुछ एडिशनल डिटेल मैंने आपको लिस्ट करके यहाँ पे दी है, जिसमें इनकी वेबसाइट्स भी हैं। ठीक है, इनकी वैलिडिटी भी दी गई है। तो वैलिडिटी इनकी कुछ की परमानेंट है, कुछ की टाइम डिपेंडेंट है। और इनमें कौन कौन से सेगमेंट्स, जो सिक्योरिटीज़ के मैं आपको भी सेगमेंट्स बता रहा था, तो जैसे इक्विटी है, इक्विटी को ही आप शेयर्स बोलते हैं, इक्विटी को ही आप स्टॉक्स बोलते हैं। इसी तरीके से इक्विटी के डेरिवेटिव्स होते हैं जिनको आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस के नाम से जानते हैं। करेंसी के डेरिवेटिव होते हैं। इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट के भी डेरिवेटिव होते हैं, कमोडिटी के भी डेरिवेटिव होते हैं, डेब्ट भी होता है, मतलब जहाँ से हम कर्जा लेते हैं मार्केट में। फिर इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड की रिसिप्ट होती है। ठीक है, इसी तरीके से और भी कई डेरिवेटिव्स होते हैं जो हम धीरे धीरे करके समझेंगे। अभी के लिए हम ये जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो द स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया सर्व्स एज द मार्केट वेयर
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड और कम्युनिटीज आर ट्रेडेड। तो ये वो मार्केट होता है जहां पर ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कम्युनिटीज बेचे जाते हैं और खरीदे जाते हैं। It is the platform where buyers and seller come together and trade financial tools during specific hours। तो यहाँ पर जो बायर्स और सेलर होते हैं वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर, अभी जो मार्केट का टाइमिंग है वो 9:15 टू 3:30 के आसपास है, तो इस टाइम के बीच में जो बायर्स हैं वो खरीद सकते हैं और जो सेलर्स हैं वो बेच सकते हैं। इसके बाद इनकी बाइंग सेलिंग बंद हो जाती है। ठीक है, इसका एक वेल कैलेंडर होता है, वेल ऑर्गेनाइज कैलेंडर होता है जो आपको इनकी वेबसाइट्स पे मिल जाता है। ये मार्केट्स कब कब खुलते हैं। सेबीज वेल डिफाइंड गाइडलाइंस हैं इसके लिए जो सेबी ने बनाई है। हाउएवर ओनली दोज कंपनी हु आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज आर अलाउड टू ट्रेड इन इट। तो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए भी कंपनी के लिए कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं जिनको उसे फिलफिल करना होगा इन मार्केट्स में ट्रेड करने से पहले। तो वो कंडीशंस हम बाद में पढ़ेंगे, क्या क्या कंडीशंस हैं किसी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने से पहले। तो स्टॉक which are not listed on a reputed stock exchange can also be traded in an over the counter market, but such shares would not be held high in esteem in the stock exchange of India। देखिए, जो शेयर्स जो हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड नहीं है उन्हें भी खरीदा बेचा जाता है, उन्हें भी खरीदा बेचा जाता है ओवर द काउंटर मार्केट के द्वारा। ठीक है, ओवर द काउंटर मार्केट में आप ऐसे शेयर्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। इनकी लिक्विडिटी कम होती है, इसलिए इनका जो वो होता है, इनके अंदर भरोसा होता है लोगों का, वो ज़्यादा नहीं बन पाता है। What we have learned, तो हमने अभी तक क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा कि क्या डिफरेंस होता है नीड्स, वांट्स एंड डिजायर्स में। फिर हमने सीखा कि व्हाट आर द सिक्योरिटीज एंड व्हाट आर द नीड ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, तो हमें सिक्योरिटी मार्केट की क्यों ज़रूरत है। देन हमने टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी मार्केट देखे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। देन हमने स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है वो पढ़ा, और उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस इंडिया के अंदर हैं। आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे इनके क्या यूजेस हैं, हम कैसे इनको ट्रेड कर सकते हैं, व्हाट इज अ शेयर, व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड एंड अदर थिंग्स। थैंक यू एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट कंटेंट like this on regular basis. Thank you so much.